So very good morning to all of you. Yesterday we had discussed about the we were discussing chemical properties of alcohol, and we had discussed the nucleophilic substitution reaction, SN1 reaction and SN2 reactions. Okay. So today we are discussing some of the remaining topic, that is dehydration of alcohol. Dehydration means loss of water molecule of alcohol. Dehydration अब ये कैसे होते हैं? This occur in the presence of H2SO4 sulfuric acid. This the reaction involves the simple mechanism as the alcohols here are converted into the alkenes in presence of sulfuric acid. So H2SO4 being acid, it gives proton and HSO4 negative. This proton is accepted by this alcohol and it forms the protonated alcohol, and being OH2 being the best good living group, so here it is a loss of water molecule takes place and the formation of carbocation is takes place. ठीक है, तो here you may say the carbocation formed here may be primary carbocation, secondary carbocation or tertiary carbocation, depends upon the alcohol you use it. If you use the second primary alcohol, there is a primary carbocation, secondary alcohol will give secondary carbocation, and tertiary alcohol will give tertiary carbocation. And the order of reactivity of the alcohols we will see later on. It depends upon this formation of carbocation. So it means that tertiary alcohols will go dehydration more fast as compared to the primary, as compared to secondary, as compared to primary. Here that we will discuss later on. Here actually what happens, the carbocation is formed here now. This carbocation from this carbocation you will know that HSO4 is already present in the solution. It abstracts this hydrogen from this CH3, as a result of which there of the shifting of the electrons towards this more positive center. As a result there is a double bond formation takes place between carbon and carbon, and due to which alkene and ethene is formed here and formation of H2SO4. तो अभी हम बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन की. तो हमने बोला था tertiary alcohols are more reactive than secondary alcohol, which are more reactive than primary alcohol. ये कैसा है? क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या है? tertiary कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल than secondary कार्बोकेटायन, which are more stable than प्राइमरी कार्बोकेटायन. क्योंकि आपको पता है कार्बोकेटायन, जब हम कार्बोकेटायन की बात करेंगे तो एक्चुअली द पॉजिटिव चार्ज is occurring on this carbon. तो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गई है, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे वहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, यानी सिर्फ ऑन यू देयर इज वन मिथाइल इथाइल या कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है. देयर इज वन मिथाइल अल्कोहल इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. तो हम प्लस आई इफेक्ट आपको पता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये जो अल्काइल ग्रुप है दे विल डोनेट, दे will give to electron density toward this carbon, as a result of which this will get stabilized somehow. Clear? But in case of secondary alcohol, you know that in secondary alcohol there are two alkyl groups are present to this carbon if the carbocation is formed here. So there are two alkyl groups which due to this inductive effect will give more electron density towards this carbon center. ठीक है, तो it will become stable, it will be stabilized more by secondary carbocation. Similarly, if there will be tertiary carbocation, in tertiary carbocation there will be three alkyl groups are connected with this carbocation center. ठीक है, as a result of which due to plus I effect, plus inductive effect, this positive center occurring on this carbon will get stabilized due to the plus I effect, due to which order of dehydration will follow the same. Tertiary alcohol are more reactive because tertiary carbocation is stabilized more, which is more reactive than secondary alcohol, which are more reactive than primary alcohol. It depends upon the stability of carbocation, that is tertiary, secondary and primary carbocation. ठीक है, it justifies the order of dehydration. तो ये क्या है कि it depends upon the stability of carbocation. More stability of carbocation, more is the reactivity of the alcohol. Clear?
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम जब करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, वी में द रिएक्शन वी में टेक्स प्लेस इन द एसिडिक और इन अल्कलाइन मीडियम और इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। द रिएक्शन द अल्कोहल्स आर ट्रीटिंग विद अल्कोहल विद अल्कलाइन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम कोई और भी रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर अल्कोहल, जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दिस अल्कोहल, क्लियर। एंड सेकंड, इट इन सम केस इन सम केसेस, जब हम सम स्पेशल केस की बात करेंगे तो नेचर ऑफ अल्कोहल पे ही डिपेंड तो करता है, लेकिन इट में ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडाइज एजेंट, यानी रिएजेंट पे भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बोथ इट में डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल एज वेल एज रिएजेंट। सो हियर वी विल सी व्हाट हैपन। ऑक्सीडेशन बस सिंपली आपको याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स, जब अल्कोहल्स की बात करेंगे ना तो अब इसमें दो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। One is first degree alcohol, second degree alcohol, third degree alcohol, primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. So what happens to them? अब प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, अगर हम इनको ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, बस सिंपली आपको याद रखना है प्राइमरी अल्कोहल यानी कि अल्कोहल जब हम उनको ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो पहले बनाएंगे एल्डिहाइड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जब प्राइमरी अल्कोहल से अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहला प्रोडक्ट हमें आपको बनना चाहिए एल्डिहाइड्स, ठीक है, यानी एल्डिहाइड्स बनेंगे। इसके बाद ये एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है उनकी, उसके बाद एसिड्स बनते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं, क्लियर। हियर वी विल सी, we'll take the example here. If there is this is primary alcohol here, acidified potassium dichromate, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, it gives the oxygen here, और ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इन अनदर केस अगर जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, we may say there when there occur increase in the oxidation number from +1 to +2, तो we may say there is a oxidation takes place. You will calculate the oxidation number of on this carbon or on this carbon, you will see there will occur increase in the oxidation number. तो इसको भी हम oxidation कहते हैं, क्लियर समझ में आया। तो अब ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी, तो यहाँ पर पहले जो बनता है ये ऑक्सीजन जो है, सिंपल याद करने के लिए इसका मैकेनिज्म इट्स मैकेनिज्म इज समवट डिफरेंट, बट यू शुड रिमेंबर हियर दैट ऑक्सीजन दिस ऑक्सीजन will bind this hydrogen, it becomes form OH, and there are two hydroxyl groups attached to this carbon. So here what happens here, now there's a loss of water molecule, तो यहाँ पर loss of water molecule हो जाएगा, यहाँ पर actually this is loss of water molecule here। तो आपको यहाँ पर this one hydrogen and which combines with this OH as result there is a formation of aldehyde। तो आपको यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होता है तो यहाँ पर एल्डिहाइड्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जब करोगे तो यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। तो सिंपली आपको याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल जब हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनता है। लेकिन इनके साथ सेकेंडरी अल्कोहल, जब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, जब हम उनको ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन कर विथ एनी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे आपका एसिडिफाइड कंडीशन एसिडिक डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या एसिडिफाइड केमिनोफोर हो, या कोई भी अल्कलाइन जो भी मीडियम आप इस्तेमाल करोगे, याद रखना है जो सेकेंडरी अल्कोहल्स दे ऑलवेज फॉर्म द कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स आपको हमेशा कीटोन्स ही बनते हैं। तो आपको सिंपल इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो इसका देखेंगे अब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाते हैं। इसी तरह से आप ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, वो इस हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट लास्ट में आप देख रहे हो द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन टेक्स प्लेस और C डबल बॉन्ड O। तो R का वैल्यू आप दे सकते हो। तो हियर
अब कीटोन जो हैं यहाँ पर आप देखो, पहले आपको याद रखना चाहिए कि ऑक्सीडेशन उन्हीं की होती है विन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल उसी की हो जाती है, वही उसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है इन नॉर्मल केस, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बताएंगे तो उसी ऑक्सीडेशन ये जो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यानी दिस एक्चुअली अल्फा मीन्स कार्बन जो होता है, ये अल्फा कार्बन होता है, और ये जो हाइड्रोजन जिसके अटैच्ड होते हैं इनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पर भी हैं तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं एक्चुअली। तो आप देखेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पर भी हैं, जिस अल्कोहल पर भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर जिसमें ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में ये कोई भी ऑक्सीडेशन होने वाली नहीं है। तो अगर हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती हैं। इसके बाद एल्डिहाइड्स तक देखो, एल्डिहाइड्स में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी प्राइमरी ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको फर्दर हमने ऑक्सीडेशन किया इन एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देंगे इन केस ऑफ अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जिसमें प्राइमरी दिस इज अल्फा हाइड्रोजन हियर, ऑक्सीडेशन हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन इसी अल्फा हाइड्रोजन के साथ हम फॉर कन्वीनियंस याद रखेंगे इसको, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर लॉस ऑफ वाटर हो गया, डिहाइड्रेशन होगी, तो यहाँ पर कीटोन्स बन जाता है, ठीक है। तो अब अगर नॉर्मल कीटोन्स और नॉर्मल रेजिस्टेंट ऑक्सीडेशन, अब यहाँ से अगर देखेंगे आप, अगर आप खुद देखोगे इस कीटोन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन होने वाली नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशन, इसलिए हम लिखते हैं कीटोन्स और नॉर्मली रेजिस्टेंट ऑक्सीडेशन। तो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने वाले, फर्दर यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं बनने वाले हैं। तो नो कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड हियर फ्रॉम द कीटोन टू द कीटोन से कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, अब यहाँ पर कोई भी क्या होता है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी अल्फा हाइड्रोजन। आप देखो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद होता है टेरिशरी अल्कोहल। अब टेरिशरी अल्कोहल जो होते हैं नॉर्मल, अब नॉर्मल कंडीशंस की बात करेंगे तो नॉर्मल ही हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। टेरिशरी अल्कोहल में अगर आप देखोगे टेरिशरी अल्कोहल में 3 क्या होते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं प्लस कार्बन और इसके साथ OH, तो ये टेरिशरी अल्कोहल है। फिर हम मुझे बताओ इसमें इज देयर एनी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नो, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से अंडर नॉर्मल कंडीशंस पर ये टेरिशरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगी। तो आप याद रखो, क्योंकि जब हम हायर क्लास की जो हायर एग्जाम्स की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि अंडर एक्सट्रीम एसिडिफाइड कंडीशन पर टेरिशरी अल्कोहल्स ये जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन उनकी हो जाती है, क्या हो जाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक केसेस होते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर हम टेरिशरी अल्कोहल्स की कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, तो क्योंकि उनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्लियर। तो अब ये आप सिंपल यू शुड रिमेंबर दैट द सेकेंडरी अल्कोहल से हमें सीधे कीटोन बनता है, लेकिन टेरिशरी अल्कोहल हैविंग नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी there is no oxidation takes place under normal conditions, clear. But when this tertiary alcohols are treating with the reagent with under acidic conditions, तो यहाँ पर जब हम टेरिशरी अल्कोहल्स की बने हुए, मैंने बताया स्पेसिफिक रिएक्शन, मैंने स्पेसिफिक केस बताया, जब हम नॉर्मल कंडीशन पर देखेंगे, नॉर्मल न्यूट्रल और अल्कलाइन कंडीशन पर देखेंगे, कोई भी हम ऑक्सीडाइज एजेंट इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होने वाले हैं टेरिशरी अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दो देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन टेरिशरी अल्कोहल, नो ऑक्सीडेशन टेक्स। बट अंडर एसिडिक कंडीशन, तो क्या होता है एसिडिक कंडीशन में, हम क्या देखते हैं, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड। लेकिन ये जो यहाँ पर स्पेशल केस अभी तक हमने देखा था, ये कार्बन एटम्स रिमेन सेम, जब ऑक्सीडेशन होती थी तो कार्बन एटम्स सेम रहते थे प्रोडक्ट में। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, इसमें स्पेशल एसिडिफाइड कंडीशन में की बात करेंगे, तो यहाँ पर कोई ये जो होता है ना, ये क्या कहते हैं इसको, ये जो अल्कोहल्स होते हैं,
ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाते हैं, लेकिन ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो बनते हैं विथ फ्यूअर कार्बन एटम, यानी प्रोडक्ट जो होता है इसमें लेस कार्बन एटम होता है टू डेट ऑफ द पेरेंट सबस्ट्रेट। क्लियर? तो हियर वी विल सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स टू द टेरिशरी अल्कोहल, ये कैसे इनकी ऑक्सीडेशन होती है अंडर द एसिडिफाइड अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन हम बता सकते हैं। तो हियर यू विल सी हियर द टेरिशरी अल्कोहल इज हियर, ऑल्दो देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, लेकिन एसिडिफाइड KMnO4 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्कलाइन नहीं, जब आपको याद रखो, जब अल्कलाइन या आपको या न्यूट्रल KMnO4 की जो अगर यहाँ पर लिखा होता है अल्कलाइन KMnO4 और न्यूट्रल KMnO4, तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन होने वाली नहीं है, यानी टेरिशरी अल्कोहल की कोई भी ऑक्सीडेशन होने वाली नहीं है, बिकॉज दे डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन एसिडिफाइड कंडीशन में KMnO4 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है। देखो क्या कैसे हो जाता है, कैसा प्रोडक्ट कैसे इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर एल्कीन बनते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन बनता है ये। तो फर्दर अगर हम देखेंगे इसको, पहले तो एल्कीन बन जाएंगे, इससे एल्कीन बनते हैं, इसको फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो यहाँ पर दो मैंने अभी बताया मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड हियर फर्स्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो एल्डिहाइड बनता है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर फॉर्मड, दे अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन, जब ये फर्दर ऑक्सीडेशन इनकी करेंगे ना, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कीटोन से बनता है, फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, इनको इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिडिक एसिड बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसमें से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसमें फॉर्मिक एसिड बनेगा और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अब यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हमें एसिड तो मिलता है, लेकिन ये जो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन although there is no presence of any alpha hydrogen, लेकिन अंडर एसिड कंडीशन KMnO4 और K2Cr7 से भी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं काम, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाली है, लेकिन अंडर एसिडिक कंडीशन, अगर न्यूट्रल और अल्कलाइन कंडीशन पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ऑक्सीडेशन, हाउ द एक्चुअल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस का मैकेनिज्म क्या है, वो हम दूसरे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके या